Okay, so good morning, students. This is Dr. Mukul Jain. So we are Good morning, sir. starting our lecture and our presentation on income tax law and administration. So under this subject, we have studied various topics. So today, first of all, I will take some one general topic, which will be helpful to you in different topics of this subject, and also it will be helpful to you for a fifth semester also. In case somebody has to appear in the fifth semester, then it will be helpful in that also, but these are general things, what are deductions, so it will be helpful in this sixth semester also. So this topic is income from other sources. What are income from other sources? Because as you know, there are five heads of income. One is income from salary, the other is income from business and profession, third one is income from other sources, fourth one is income from capital gains, and fifth one is income from property. So what comes under income from other sources? So you must know. Now, income chargeable under the head income from other sources, it includes dividends. Dividends is any other income. Number two, I hope you are able to hear me. I hope you are able to see the slide. So please say yes. All of you are able to see. Number two, winnings from lotteries, crossword puzzles, horse races, card games, other games of sort, gambling, betting of any form of nature. So if you win any lottery or any game or maybe any quiz show on television, horse races, gambling, etc., comes under other sources. Similarly, third is recovery of PF and welfare fund contribution from employee by employer. So if you get money of PF or any other welfare fund, it is also income from other sources. Interest on securities. Whatever interest you get from your bank or from bonds and debentures also comes under income from other sources. Fifth is income from machinery, plant, and furniture let on hire. If you have given your machinery or any other furniture on hire and you have got the rent of it, it will also income from other sources. Now, here it is very important to distinguish between another head called income from uh, property. So that rent is from property. This rent is from other than property. And sixth is sum received from Keyman insurance policy. This is for business concerns. Some business concerns, they get money from Keyman insurance policy. So this will also, for them, it will be uh, either business income or they can also show as income from other sources. And seventh is income from subletting of a house property. Now, again, I am saying that income from house property is a separate head. Whereas if you sublet a house property, suppose you are a tenant in a house and as a tenant you have further given some portion of the house on rent, then this is your extra income. So this will come under income from other sources. Is this point clear to you? Subletting. Although subletting may not be allowed in certain cases, but if it is allowed, so then, because a person is not the landlord, so if the person is not the landlord, he himself is a tenant, but he is giving this house property on rent to another tenant. So this income will be income from other sources. Is it clear or not? Please say yes if it is clear. Then eighth point is, हाँ clear है? क्लियर है या आप ने किसी ने मैसेज भी भेजा होगा? ओके. So similarly, casual income and non-recurring income is also income from other sources. Casual income and non-recurring income. Non-recurring means non-regular income. Income which is not occurring regularly to a person is called non-recurring income. Casual income means casually, some money has come to you through gift or
maybe for teachers, somebody has taken a tuition, so that is casual income. Insurance commission, suppose you are not full-time insurance agent, but you have doing some job or you are in a full-time business, but part-time you sell some insurance policies, so this commission you can put in income from other sources. Then 10th is family pension. If a person who himself was an employee and he retired, his pension will be treated as a salary income. However, when this person dies and his wife starts getting the pension on the death of his husband, so this pension will be known as family pension. So for the wife, for the widow of the person who have died, who this pension will be known as family pension, and so family pension can be put under income from other sources. 11th point is director sitting fees. Now you have studied company law. In company law, directors get some sitting fees. For example, to attend the meetings, they get the fees. This is known as director sitting fees. So this sitting fee also comes under income from other sources. 12th point is interest on bank deposits. Again, it had come in my past slide also. Interest on bonds, debenture, or on bank deposits comes under income from other sources. Next, 13th point is deposits with companies. So deposit with companies, and you are again getting interest or interest on loans. So whatever interest is will be coming under income from other sources. 15th is income from undisclosed sources. Means from undisclosed sources, it could be gift or it could be any money a person has got. Is called income from other sources. Then 16th is remuneration received by member of parliament. For MPs, the remuneration which they receive, they can show in income from other sources. Similarly, examiner fees from non-employer. Suppose if I am an employee of an educational institution and I go to take practical at some other college, so I am getting the examinership fees from the university or from the other college, so this will also come under income from other sources. For example, for you people, there is every semester there is a external examiner who comes, so he also gets a fees from the university or from the college where he is visiting. So that he will not show in his salary, he will show in his income from other sources. Similarly, 18th point is interest from URPF, that is unrecognized provident fund on employees' contribution. If the provident fund is unrecognized, so whatever money one is getting will be income from other sources. 19th point, rent from vacant plot of land. Now rent from a building, rent from house property or factory or shop will be the fifth head, whereas rent from a vacant plot of land will come under income from other sources. Similarly, 20th point is agricultural income from land situated outside India. If it is a land outside India, then also it will be income from other sources. 21st point, interest on income tax refunds. Anytime we pay extra tax to the income tax, or our TDS has been deducted, which was more than the actual liability of the individual, or the person has paid an advance tax. So in that case, if the person is receiving the refund, he will show this income tax refund as income from other sources. Similarly, 22nd point is income from royalty not taxed under business or profession. So if the person has written a book and he is not a full-time author, let's say he's a professor and he has written a book and he is receiving the royalty, so he cannot show it under business and profession because this is not his regular business of writing books. So this royalty income can be shown as income from other sources. Similarly, 23rd point is guarantee commission to directors. Some directors may get a guarantee commission or director's commission for underwriting sales or gratuity received by a director, not as an employee,
could also be income from other sources. Now let us very quickly see which are the income which are exempted. Suppose you get a numerical problem, so there they will give you a lot of incomes. So you must know that which income you have to set apart, which is not chargeable to tax. For example, National Saving Annuity Certificate, NSC, Treasury Saving Deposit Certificates, Post Office Cash Certificates, National Plan Saving Certificate, Post Office National Saving Certificate, Cumulative Time Deposits. चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको आपको और सिंपल तरीके से बताएंगे. Now some of the this I told you last time, deduction not available under section 58. Personal expenses of an SSC. If you are calculating income of a business firm, then personal expenses are not allowed for deduction, or any interest paid outside India on which tax has not been deducted at source. In such case, interest paid or payable will not be allowed as deduction. If somebody has paid interest outside India and TDS has not been deducted, so therefore this also will not be allowed as deduction. चलो इसको भी अभी छोड़ देते हैं. गिफ्ट का मैंने आपको 5th सेमेस्टर में देयर वाज अ थिंग ऑफ गिफ्ट. जस्ट 1 minute. हाँ, what is the income tax law on gifts? Gift, what does gift means? Gift means received without consideration under such and such section. Now, nature of the asset, money, particulars without consideration. If you have got some money from somebody without consideration, means you have not done any work for that person. So what will be the taxable value? The whole amount will be taxable if it exceeds 50,000. So up to 50,000 rupees cash you can receive in a financial year. The moment it exceeds 50,000 rupees, and not the extra amount which you have received, the whole amount will be taxable. Similarly, if you receive a movable property without consideration means without any, you have not given any money to the other person. You have not done any work for the other person, but the other person has given you a gift in the form of movable property. So here also taxable value will be the fair market value of the property. This is for movable property. Movable property means it could be furniture, it could be an automobile, it could be a laptop, it could be a television, it could be a refrigerator. So that is movable property. So if it exceeds 50,000, same, the whole will be taxable. Movable property, inadequate consideration. That is, somebody has taken money for it, but he has taken a small amount of money, then its actual value. So therefore, what will be the taxable value? The difference between the fair market value and the consideration if it exceeds 50,000. तो जो भी आपने सपोज कोई किसी ने आपको कार दे दी है जिस कार की वैल्यू 10 लाख है, उसने लिए आपसे 2 लाख है, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन का 8 लाख. तो 8 लाख आपका टैक्सेबल हो गया, क्योंकि 10 लाख में 2 लाख रुपया आप दे चुके हैं, तो 8 लाख रुपया इसका टैक्सेबल हो गया. नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन आपको मिली है. इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस इट कैन बी लैंड, इट कैन बी बिल्डिंग, real estate basically. So what will be the taxable value? The stamp duty value if it exceeds 50,000. So whatever is the stamp value of the property, it will be taxable. Similarly, inadequate consideration is there, then the difference will be taken from you. And condition for applicability, that number 1, the recipient is an individual or a Hindu undivided family for any sum of money exceeding 50,000 rupees for any movable property. ये वही चीज आ गई. प्रॉपर्टी में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग,
share, securities, jewelry, drawings, paintings, sculptures, any work of art. Gift mein there are certain exemptions also. There are certain exemptions that it will not be taxable to certain persons. Suppose if you receive any gift from any relative, relative here means spouse of the individual. If the gift has been given to the spouse, so spouse को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे हस्बैंड ने वाइफ को दिया है या वाइफ ने हस्बैंड को दिया है, या दूसरे रिलेटिव से आपको मिला है. रिलेटिव का क्या मतलब है यहाँ? स्पाउस या ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल. आपको अपने ब्रदर से या सिस्टर से कोई भी चीज मिली है तो वो टैक्सेबल नहीं है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है आपके हाथ में. या ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, या उसको अपनी वाइफ के ब्रदर या सिस्टर से मिले, या लेडी को अपने हस्बैंड के ब्रदर या सिस्टर से कोई भी गिफ्ट मिले तो वो भी टैक्सेबल नहीं है. या ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, या उसके पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर से मिले, या एनी लीनियर डिसेंडेंट और असेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल. लीनियर असेंडेंट का मतलब है ऊपर वाले, फादर से, मदर से. नीचे वालों में हो गया बेटे से, ग्रैंडसन्स से, ग्रैंड डॉटर से या डॉटर से. सिमिलरली अगर स्पाउस के, अगर किसी को उसकी वाइफ के भी फादर से, वाइफ की मदर से, या वाइफ के चिल्ड्रन से हो तो उसके भी चिल्ड्रन हो गए, या वाइफ के ग्रैंड चिल्ड्रन से भी कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल है. Last point is spouse of the person referred to in clauses 2 to 6. तो अगर ब्रदर की स्पाउस से भी मिलता है, ब्रदर की वाइफ से भी गिफ्ट मिलता है, वो भी नॉन टैक्सेबल है. या अपनी सिस्टर के हस्बैंड से मिलता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल है. ये क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, स्टूडेंट्स बोलते नहीं हो आप लोग, डोंट रिस्पॉन्ड. क्लियर था ये पॉइंट जो मैंने बताया अभी? कुछ और एग्जेम्पशन है गिफ्ट में. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शंस है. ऑन द मैरिज ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, whether the gift is received from a relative or outsider. So even if the gift has been received from any outsider, then if on the occasion of the marriage of the individual, if he or she receives any gift, those are not taxable. Or if a person has received a gift under a will or by way of inheritance, किसी ने कोई अपनी वसीयत में लिख दिया है अपनी सारी जायदाद या अपनी प्रॉपर्टी या अपना पैसा या ज्वेलरी किसी के नाम कर दी है, तो उस वो एक तरह का गिफ्ट विल के थ्रू हो गया तो वो नॉट टैक्सेबल होगा. या इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर, जो पे करने वाला है, डोनर है, उसकी डेथ होने वाली है और उसने वो गिफ्ट दिया है, तो इस तरह के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई गिफ्ट दिया हुआ है तो वो भी नॉन टैक्सेबल हो सकता है. या फिर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से मिला है, या किसी यूनिवर्सिटी से, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, या चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है, तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा. 50,000 तक तो नॉन टैक्सेबल है ही वैसे ही है. ठीक है, तो ये So this was a small brief about income from other sources and about the gifts. So it will help you in working any numerical problem relating to this. Now let us see another slide. So if you remember, we had talked about appeal to Commissioner of Income Tax. तो इसमें थोड़ा सा रह गया था हमारा.
अपील का मतलब क्या है कि अगर कोई पेनल्टी लगी है, हमने एक बार पेनल्टीज के बारे में पढ़ा था कि अगर पेनल्टी लगी है किसी भी इनकम टैक्स एसएससी को, तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अपील कर सकता है। तो इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है इसमें, एट टाइम्स दैट इट मे हैपन दैट द टैक्स पेयर इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, इन सच अ केस ही कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। तो अपीलेबल ऑर्डर कौन सा होगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। सबसे पहले अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को की जाएगी। Section 246A specifies the order against which an appeal can be filed before the Commissioner of Income Tax Appeals. The list of major orders against which an appeal can be preferred before the Commissioner of Income Tax is given below. कौन कौन से ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को? नंबर 1, order passed against the taxpayer in a case where the taxpayer denies the liability to be assessed. कोई टैक्स पेयर है, उसके खिलाफ टैक्स लगा दिया गया है, वो उसके खिलाफ अपील करना चाहता है। सिमिलरली सेकंड है, कोई एक 143(1) में सेक्शन में वेयर एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन इनकम ऑफर टू टैक्स एंड रिटर्न ऑफ इनकम। चलिए ये सारे आप मतलब ऑर्डर ऑफ असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है, रिकम्प्यूटेशन का है, ये बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें वो अपील करना चाहता है या वो रीअसेसमेंट करवाना चाहता है अपना, उसके यहाँ कोई सर्च या सीजर हुआ है, कोई छापा हुआ है, उसके खिलाफ वो अपील करना चाहता है। या फिर देखिए ये वाला है, ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द टैक्स पेयर एज एन एजेंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट। आपके ऊपर उन्होंने चार्ज लगा दिया, भाई आप नॉन रेसिडेंट कोई इंडियन है, उसके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया। तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पर आप अपील कर सकते हैं। HUF से रिलेटेड अगर कोई मसला है उसमें भी कर सकते हैं, कोई शिपिंग कंपनी से रिलेटेड मसला है तो उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है फॉर प्रेजेंटिंग एन अपील? टाइम लिमिट है 30 डेज। 30 डेज कब से? वेयर द अपील रिलेट्स टू असेसमेंट और पेनल्टी, द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड रिलेटिंग टू द असेसमेंट और पेनल्टी। जिस दिन आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी है। अच्छा जी, फॉर्म ऑफ अपील क्या होगी? इसमें एक फॉर्म नंबर 35 बनाया है, उसके अंदर उसको भरेंगे तो वो एक तरह से अपील हो जाएगी। और फर्दर लिखा है, फर्दर ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर पर्सन्स फॉर हुम ई फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी। तो अपील को ई फॉर्म में ही अप्लाई करना जरूरी है, आवश्यक है। सिग्नेचर टू द अपील, अपील को साइन भी करना होगा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। द फॉर्म ऑफ अपील ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड द फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन are to be signed and verified by the person authorized to sign the return of income under section 140 as applicable to the taxpayer. HUF के केस में अपील कर्ता फाइल करेगा, जो कर्ता होगा फैमिली का। अगर कंपनी अपील फाइल कर रही है तो कंपनी के केस में MD फाइल करेगा, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर फॉरेन कंपनी है तो अपील कौन फाइल करेगा? बाय अ पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम सच कंपनी। तो उस पर्सन के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए फॉरेन कंपनी के बिहाफ पर। इंडिया में अपील फाइल कर रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर फर्म है तो फर्म का पार्टनर होगा या मैनेजिंग पार्टनर होगा, वो अपील को फाइल करेगा। LLP के केस में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होती है, उनके केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं, वो करेगा। अगर लोकल अथॉरिटी है, जैसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो फाइल करेगा अपील का। पॉलिटिकल पार्टी के केस में बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी विल फाइल एन अपील। दूसरी कोई एसोसिएशन से तो उनका एसोसिएशन का जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है वो फाइल करेगा अपील। अपील से पहले एक टैक्स को पहले ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप अपील में टाइम लग जाए और आप टैक्स ना दें, पहले टैक्स जमा कर दीजिए। अपील में अगर आपका फेवर में अपील का फैसला होता है तो आपका जो टैक्स आपने जमा किया है वो वापस हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है, बिफोर फाइलिंग द अपील द टैक्स पेयर शुड पे द टैक्स डिटरमाइंड एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय। इफ नो रिटर्न ऑफ
income is filed, the taxpayer should pay tax equal to the amount of advance tax payable by him. कम से कम एडवांस टैक्स जितना उसका बनता है वो तो पे करे कम से कम. However, an application made by the taxpayer to the Commissioner of Income Tax appeal may exempt the taxpayer from payment of tax before filing the appeal. Such benefit is granted if good and sufficient reason is provided by the taxpayer for non-payment of tax before filing the appeal. अगर टैक्स पेयर पे नहीं करना चाहता टैक्स तो वो अपना रीजन लिखे कि भाई मेरा क्या रीजन है, और वो रीजन जस्टिफाइड होना चाहिए. अगर इनकम टैक्स से कमिश्नर को लगता है कि हाँ ये रीजन जस्टिफाई है तो वो आपको छूट दे सकता है टैक्स फाइल करने से, जब तक आपकी अपील की सुनवाई नहीं होती. तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपील के लिए. डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर अपील. नंबर पहला फॉर्म नंबर 35 और इसकी ई फाइलिंग होनी जरूरी है. और 1 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो पिछला ऑर्डर है जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं उसकी भी एक कॉपी आपको सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी, मतलब साइन वाइन करके या टेस्ट करके. नोटिस ऑफ डिमांड, वही जो नोटिस आया आपके पास डिमांड के लिए कि साहब इतने पैसे जमा कर दीजिए, उसको वो भी ओरिजिनल में लगाना पड़ेगा. फिर कॉपी ऑफ चालान ऑफ फीस, द डिटेल ऑफ द चालान, पेमेंट ऑफ फीस, सीरियल नंबर, अमाउंट ऑफ फीस. सो अगर आपने फीस जमा करी है तो उसका चालान की कॉपी लगेगी. फीस क्या है इसको फाइल करने की. आई होप आप सबको मैं सुनाई दे रहा हूँ. ठीक है. हाँ, तो फीस क्या है इसकी अपील फाइल करने की. द फीस फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आर एज फॉलोज. Where assessed income by the assessing officer is. ठीक है, फीस तो जमा करने की है फॉर्म, अपील का फॉर्म कोई बहुत नॉमिनल रखी हुई गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है. क्या आपकी लायबिलिटी 1 लाख है या 1 लाख से कम है तो 250 रुपए की आपको फीस जमा करानी पड़ेगी अपील के लिए. अगर 1 लाख से और 2 लाख के बीच में आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो 500 रुपए की फीस है. और अगर 2 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है इनकम टैक्स के नोटिस के अनुसार तो आप 1000 रुपए की फीस भरेंगे. Where subject matter of appeal relates to any other matter that is other than above, then the सब्जेक्ट मैटर अपील का सिर्फ वो ये नहीं है, टैक्स नहीं है, कुछ और भी हो सकता है कि आपके जुरिस्डिक्शन उन्होंने बोल दिया कि नहीं साहब आपके लिए ये ऑफिस नहीं लगता, दूसरा ऑफिस लगेगा. जुरिस्डिक्शन का मसला है और बहुत सारे मसले हैं जिसमें टैक्स की बात नहीं है तो उसमें 250 रुपए की फीस है. अब प्रोसीजर क्या है अपील का. आफ्टर द रिसीप्ट, जो फॉर्म नंबर 35 बताया है अपील का, उसको आपने लेना है. देन द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील विल फिक्स अ डेट एंड प्लेस फॉर हियरिंग द अपील. जब आप अपना फॉर्म जमा कर देते हो, फीस जमा कर देते हो, पुराना टैक्स जमा कर देते हो, तो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील का है वो आपकी सुनवाई की तारीख दे देता है, उसकी डेट फिक्स कर देता है. नेक्स्ट, द डेट एंड प्लेस विल बी कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर एंड टू द असेसिंग ऑफिसर. जरूरी नहीं है साथ के साथ डेट दे, वो अपना टाइम टेबल देख करके आपको डेट जो है वो आपको फिक्स कर देगा जब आपको फिजिकली मिलना होगा. और कम्युनिकेशन जो है दोनों पार्टीज को भेजा जाएगा. जो इनकम टैक्स का असेसी है जिसने कंप्लेंट फाइल की है उसको भी भेजा जाएगा, और जिसके खिलाफ सपोज असेसमेंट ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ ये अपील है तो असेसमेंट ऑफिसर को भी उसकी कॉपी भेज दी जाएगी कि जब उनको उनके सामने पेश होना है. नेक्स्ट है, इन द अपील्स प्रोसीडिंग्स the taxpayer or the assessing officer can either appear personally or can appear through an authorized representative. अब ये इतनी छूट दी हुई है कि टैक्स पेयर खुद भी आ सकता है तो आ जाए, असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स है वो भी खुद आ सकता है तो आ जाए, वरना वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक नुमाइंदा भेज सकता है. नेक्स्ट, वी आर सेइंग दैट द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स वुड हियर द अपील एंड may adjourn the case or adjourn the appeal from time to time. तो खुद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को सुनेगा. और देखिए समय समय पर, जरूरी नहीं है कि दिन में सारा फैसला हो जाए, तो जैसे कोर्ट्स में होता है तो वो टाइम टू टाइम जो है नई नई तारीख वो दे सकता है. नेक्स्ट है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील may make such further inquiries as he thinks fit or may direct the assessing officer to make further inquiry and report the result to him. तो कमिश्नर के पास इतनी पावर है कि वो फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकता है अगर वो जरूरी समझे, और असेसिंग ऑफिसर को और दोनों पार्टीज को अपने
सामने पेश होने के लिए निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपील द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील may allow the taxpayer to go into additional grounds of appeal. However, additional grounds will be accepted only if the Commissioner of Income Tax Appeals is satisfied that omission of these grounds from the form of appeal was not willful or unreasonable. देखिए कई बार क्या है कि अपील में कुछ पॉइंट्स रखे असेसी ने, उसके बाद उसको लगा अरे यार कुछ पॉइंट्स तो मेरे रह गए थे, तो वो बाद में उन पॉइंट्स को रख रहा है। तो इसके लिए एडिशनल ग्राउंड्स रखने के लिए अपील के कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तभी अलाउ कर सकता है दूसरे पक्ष को जब उसके सामने, जब वो सेटिस्फाइड हो दैट ओमिशन ऑफ दीज ग्राउंड्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अपील वाज नॉट विलफुल और अनरीजनेबल। कि पिछली बार क्यों छूटे थे उसमें कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि भाई पिछली बार क्यों नहीं बताए थे ये फैक्ट्स, आप सोच के इसका बता रहे हो। तो ये शक होता है कि सोच के किसी पॉइंट को बता रहे हो तो आपने कहीं उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर लिया, कहीं टुक तो नहीं कर ली कोई इंफॉर्मेशन आपने। अब ये एडिशनल ग्राउंड्स होते कौन से हैं? एडिशनल ग्राउंड्स मींस ग्राउंड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफाइड इन फॉर्म नंबर 35। तो एडिशनल एविडेंसेस की हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द अपील प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स द टैक्स पेयर is permitted to produce only those evidences, whether they are oral or documentary, which are produced by him before the assessing officer. देखिए ये क्योंकि इनकम टैक्स के मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं, बाद में कोई भी नई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करते के बाद, पर शुरू में जब आपने अपील की है और आपकी सुनवाई हुई है, जो भी आपने अपने अकाउंट बुक्स, अपनी कैश स्टेटमेंट्स, अपनी कैश फ्लोज, अपने जर्नल्स, अपने लेजर, वो सारे आपने प्रेजेंट किए थे। अब आप कह रहे हो कि साहब नई कैश बुक है, नई कैश बुक कैसे आ गई? तो इसका मतलब ये पुराने गलत थे आपके। तो इसलिए ये बनाया था टैक्स पेयर इज परमिटेड टू प्रोड्यूस ओनली दोज एविडेंसेस व्हिच वर प्रोड्यूस्ड। जो असेसिंग ऑफिसर के सामने उसने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे वही अब कमिश्नर के सामने ही पेश करे ना, क्योंकि फिर उसकी इनकम टैक्स ऑफिसर की या असेसिंग ऑफिसर की गलती क्या हुई? आपने वहां पूरे डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए और आप कमिश्नर के सामने दूसरे डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट तो सेम ही होने चाहिए ना। ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है कि कमिश्नर जो है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो कौन कौन से केस में एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट की जा सकती है? नंबर पहला ए, वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज रिफ्यूज्ड टू एडमिट एविडेंस व्हिच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड। भाई ये असेसी बोल सकता है कि मैंने तो अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, पिछली बार असेसिंग ऑफिसर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो आप देखिए, तो उस केस में हाँ एक्सेप्ट कर सकता है जो कमिश्नर है। या सेकंड है, वेयर द एपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस व्हिच ही हैज कॉल्ड फॉर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। या जो असेसी है यानी जो अपील कर रहा है, एपेलेंट बोलते हैं उसको, वो ये बता सके कि साहब सही जेन्युइन रीजन दे कि उसको किसने पिछली बार रोका था एविडेंस देने के लिए। तो कई बार कैसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात हो सकते हैं, तो ये उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए दोबारा लिखा है, वेयर द एपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एनी एविडेंस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर व्हिच इज रेलेवेंट टू एनी ग्राउंड फॉर अपील। तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि साहब पिछला इनकम टैक्स जो असेसिंग ऑफिसर था वो हो सकता है मेरे खिलाफ हो, उसकी और मेरी कुछ पर्सनल चीजें हो, तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखने से इनकार कर दिया। डी पॉइंट, वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज मेड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द एपेलेंट टू एड्यूस एविडेंस रिलेटिंग टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील। कोई चीज है जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी सुनने की, वो बोलता रहा सर मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट देख लो या मेरा पक्ष भी जो सुनो, तो कई असेसिंग ऑफिसर ऐसे होते हैं वो सुनते नहीं है दूसरे। तो उस केस में असेसी जो है वो नया एविडेंस कमिश्नर के सामने पेश कर सकता है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, नॉर्मली द टैक्स पेयर हैज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एडिशनल एविडेंसेस। इन अदर वर्ड्स द एडिशनल एविडेंसेस आर टू बी अकम्पनीड विद एन एप्लीकेशन स्टेटिंग द रीजंस फॉर देयर एडमिशन। वही जो वाली चीज है जो मैंने अभी आपको बताई।
On receipt of such an application, the Commissioner of Income Tax Appeals may admit the same after recording reasons in writing for the admission of the same evidence. Even कमिश्नर भी आपका ले तो जरूर ले रहा है वो नए डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसको भी रीजन लिखना पड़ेगा कि वो क्यों ले रहा है, क्या रीजन था। जो डॉक्यूमेंट पीछे इनकम टैक्स के असेसिंग ऑफिसर को नहीं दिखाए, वो आप कमिश्नर को दिखा रहे हैं, तो उसका कोई रीजन तो होगा, वो रीजन इसको बताना है। लेकिन इससे पहले लास्ट पॉइंट जो लिखा है, इससे पहले इनकम टैक्स के कमिश्नर को इवन अपने से जो जूनियर है असेसिंग ऑफिसर, उसको भी एक रीजनेबल अवसर देना पड़ेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो भी उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को या एडिशनल एविडेंस को एग्जामिन कर सके, या फिर वो अपनी तरफ से एविडेंस दे कि भाई ये जो नई एविडेंस दे रहा है ये गलत है, ये हो सकता है फर्जी हो, ये हो सकता है कुक की हुई हो। क्लियर है सब लोगों को जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी? अब देखिए जो डिसीजन है कमिश्नर का अपील के ऊपर डिसीजन का क्या लीगल एंगल है, ये हम पढ़ रहे हैं। ऊपर करने के बाद हाँ जी, लास्ट वाला पॉइंट निकल के है, लास्ट नीचे ये वाला पॉइंट बिफोर। हाँ, मान लीजिए मैं कमिश्नर हूं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स देख रहा हूं। अब मेरे पास अपील की है, आप इनकम टैक्स के असेसी हो, आप एक नई एविडेंस ला रहे हो मेरे आगे, नए पेपर्स ला रहे हो जो आपने पिछले इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं दिखाए। तो पहले मैंने क्या कहा है कि पहले तो मैं रीजन पूछूंगा, भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिखाए, अब आप मुझे दिखा रहे हो अपील में, तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? क्योंकि देखिए अकाउंट से रिलेटेड मामले होते हैं, अकाउंट्स में या आपके पास कोई बिल है, आपने कहा कि साहब ये मेरा अलाउ नहीं किया, कोई खर्चा अलाउ नहीं किया, या मेरी एक्स्ट्रा इनकम लगा दी, तो आपने उनको क्यों नहीं दिखाए? अब नए से कहाँ से पैदा हो गए ये डॉक्यूमेंट्स? या तो आपने नए फोर्जरी से किए हो, तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तब दूंगा डॉक्यूमेंट। चलो मैं सेटिस्फाई हो गया, आपने मेरे को वो डॉक्यूमेंट दी, अब वो डॉक्यूमेंट मैं उसके ऊपर फैसला लेने से पहले मैं उन डॉक्यूमेंट को अपने से जो नीचे मेरा जो ऑफिसर है इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको भी भेजूंगा, उसको भी मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को भी कि वो अब जो फ्रेश एविडेंस उसके पास आई है टैक्स से रिलेटेड या फ्रेश डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसको एग्जामिन करके वो अपनी राय दे उसको, तब मैं फैसला लूंगा। तभी लिखा है देखो, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिशनल एविडेंस फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स has to provide a reasonable opportunity to the assessing officer for examine the additional evidence, जो additional evidence अब आई है, और the witness, या कोई नया witness लाया है भाई कि देखो भाई witness लाया है, मैंने ये उसी का पैसा इनकम थी, मेरी इनकम नहीं है, आप मेरे ऊपर जोड़ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, witness लाया है वो, as well as to produce evidence to rebut additional evidences produced by the taxpayer। तो मैं अपने नीचे वाले को तो मौका दूंगा ना, अगर वहीं से ही उसने कह दिया हाँ जी ओके है ये इनका, हाँ ये इसने पिछले बार दिखाया नहीं था, अगर ये दिखाता तो मैं इसके ऊपर टैक्स ना लगा, जब उसने ही कर दिया तो अपील लो, तो मैं कमिश्नर हूं, मेरा काम आसान हो गया ना फिर। और फिर सबसे पहली बात तो ये है, जस्टिस इन द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस आई हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू माय ऑफिसर आल्सो, वरना मेरा ऑफिसर की बात गलत हो जाएगी, मैंने उसके ऑर्डर को पलट दिया तो उसको भी तो मुझे चांस देना चाहिए अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट उसको दिखाने का। ठीक है, अच्छा आप लोग ना प्लीज बीच में थोड़ा सा बोलते रहे, मैं यस नो का भी पूछता हूँ तो कोई बोलता नहीं है, बिकॉज दिस इज ए वन वे सेशन, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ अभी। Okay, तो क्या होता है कि हमें भी नींद आने लगती है बोलते बोलते, तो थोड़ा बीच में, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा, बीच में यस सर थोड़ा सा बोलते रहो, थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछते रहो, तो थोड़ा सा हमें भी बोलने में आसानी होती है, वरना हमें नींद आने लगती है। ठीक है, ओके सर। हाँ, क्या है कि डिसीजन ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आफ्टर हियरिंग द केस और आर्ग्यूमेंट्स द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स विल पास हिज ऑर्डर। केस के आर्ग्यूमेंट होंगे जैसे कोर्ट में होते हैं, तो उसी तरह से कमिश्नर तो एक तरह से कोर्ट है, द ऑर्डर जो भी देगा वो राइटिंग में देगा ऑफ कोर्स, द ऑर्डर विल बी पास्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील,
and will state the decision on each ground of appeal along with reason. तो जैसे कोई भी जज देता है अपना पूरे रीजन देता है, जो भी फैसला देता है, तो वो जो भी ऑर्डर पास करेगा, जो भी फैसला करेगा, उसका अपील का डिस्पोजल मतलब या अपील का निवारण करेगा, निस्तारण करेगा अपील का, और उस पर अपना डिसीजन दे देगा। नेक्स्ट लिखा है इन केस ऑफ एन अपील अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर the commissioner of income tax appeals may confirm, reduce, enhance or annul the assessment. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कंफर्म भी कर सकता है नीचे वाला जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने दिया कि नहीं भाई वो ये लगेगा, या कम भी कर सकता है, उसका टैक्स रिड्यूस कर सकता है, या उसकी सजा को रिड्यूस कर सकता है। देखिए ये बात उसकी नहीं है सिर्फ टैक्स कम करने की, फाइन भी लग सकते हैं, उसके पास इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, तो उसको कम कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। पता कई बार ऐसा भी होता है कि अपील उसने लगाई और बढ़ करके उसको लगा दिया। और एन्यूल, एन्यूल का मतलब होता है खत्म ही कर दिया उसने कहा नहीं कोई केस ही नहीं बनता, तो इनमें से कुछ भी कर सकता है। ये तो था हाँ अपील अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। अगर पेनल्टी ऑर्डर के ऊपर अपील है तब भी उसके अंदर यही कर सकता है, वो कंफर्म, रिड्यूस और एनहांस। हाँ, अगर पेनल्टी को वो टोटली कम नहीं कर सकता, पेनल्टी को या तो कंफर्म करेगा या कम करेगा पेनल्टी को, या बढ़ा सकता है, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर जो है उसको एन्यूल कर सकता है। एन्यूल का मतलब उसको जीरो कर सकता है, पेनल्टी को जीरो नहीं कर सकता कमिश्नर। Before enhancing any assessment or penalty, the Commissioner of Income Tax Appeals has to provide a reasonable opportunity to the taxpayer to present his case against such enhancement. अगर वो बढ़ा रहा है कमिश्नर और उसका सजा या उसकी पेनल्टी या उसका टैक्स, तो उसको फिर दोबारा सुनने का उसको पूरा चांस देना पड़ेगा, क्योंकि अपील सुन रहा है तो दूसरी पार्टी को पूरा पक्ष देना पड़ेगा उसकी बात सुनने का। While disposing of an appeal, the Commissioner of Income Tax Appeals may consider and decide any matter arising out of the proceeding in which order appealed against was passed, even if such matter was not raised by the taxpayer before the Commissioner of Income Tax Appeals. देखो कोई ऐसा मैटर होता है जो भले ही पार्टी ने रेज ना किया हो, तो कमिश्नर कहने का मतलब है हर एंगल पे उसको स्टडी करेगा उस केस में, कोई भी अपना फैसला देने से पहले। अब है डिस्पोजल ऑफ द अपील। वेयर इट इज पॉसिबल द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द अपील वाज फाइल्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में अपील को फाइल की है उसके फाइनेंशियल ईयर से 1 साल के अंदर अंदर अपील की सुनवाई में फैसला आ जाना चाहिए। सपोज कर लीजिए आप अपील उसने 1920 में दी थी, तो 1920 कब खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, तो 31 मार्च 2020 से 1 साल के अंदर अंदर उसको अपना फैसला देना है। तो उसके पास तो कई बार बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने 1 साल का टाइम रखा है इनकम टैक्स लॉ। तो अभी इसमें अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखें तो अब ये है, नीचे देखिए मेरा कर्सर देखिए, द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील इज द डैश अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट है, क्योंकि सबसे पहले जो अपील आप देते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को देते हो, ये तो पहली अथॉरिटी है। सेकंड, सेक्शन डैश स्पेसिफाइज द ऑर्डर्स अगेंस्ट व्हिच एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। कौन से सेक्शन में हम अपील फाइल करते हैं? कौन सा? बी है। बी है, वैसे अगर याद हो सकता है तो कर लेना, जिसको याद हो सकता है तो अगर एग्जाम में लिख सकते हो तो लिख लेते ना, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। तो सेक्शन 246A एक सेक्शन है जिसके अंदर ये कमिश्नर के ऊपर अपील फाइल होती है। ये बड़ी सिंपल सी है, 2 2 4 2 3 6 246, ऐसे याद कर लो। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को पे 246 और ए पहला लेटर है ये अल्फाबेट का। तो 2 का आपको टेबल याद करनी है, 2 का पहाड़ा याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स।
where the appeal relates to any assessment or penalty, the same should be presented within 30 days from the date of service of notice of demand relating to the assessment or penalty. कोई भी असेसमेंट या पेनल्टी से है अगर अपील, तो द सेम शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल हो जानी चाहिए। तो आंसर है ट्रू, ये सही बात है। जब भी जिस दिन भी उसके बाद नोटिस आया उसके 30 दिन के अंदर उसको अपील फाइल करनी। के बाद हम आते हैं आपके 5th क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दिया हुआ ये सेक्शन से रिलेटेड है। अपील टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 35। एक 35 फॉर्म नंबर होता है, सो आंसर है यहाँ बी। उसमें फॉर्म नंबर 35 में आपको अपील फाइल करनी है। फिर 6th क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, the form of appeal, the grounds of appeal and the form of verification are to be signed and verified by the कर्ता of the family। ये भी है कि फॉर्म अपील जो है वो कर्ता करेगा, ट्रू है ये ट्रू। 7th है, कॉपी ऑफ चलान्स ऑफ फीस पेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद फॉर्म नंबर 35। जब आप फॉर्म नंबर 35 भर रहे हैं जो कि अपील का फॉर्म है, उसके साथ जो फीस देंगे, जैसे 250 रुपए या 500 रुपए की फीस का चालान देना है या नहीं देना, साथ में देना है, तो आंसर है ट्रू। सॉरी फॉल्स है, नहीं वो अच्छा वो कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड टू बी, तो फॉल्स हो गया, इट्स रिक्वायर्ड। फिर कितनी फीस है, वो कह रहा है वेयर असेस्ड इनकम इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन 2 लाख, द फीस कितनी है, 1 लाख और 2 लाख के बीच में फीस है 500 रुपए बी। और अगर 1 लाख तक का अगर आपका केस है तो 250 रुपए फीस है। ठीक है, ये आ गया नीचे दोबारा। अगर 1 लाख रुपए तक का है आपका केस तो 250 रुपए अपील का फीस है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में 500 है, 2 लाख से ऊपर 1000 रुपए फीस है। ठीक है, अब थोड़ा अभी और हमारे पास आधा घंटा है, एक हम और करेंगे इसके ऊपर। अगर अपील करेंगे हम, कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उससे आपको राहत नहीं मिली कमिश्नर से, जैसे आप लोअर कोर्ट की अपील करते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो सिमिलरली इनकम टैक्स में भी है, इनकम कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर से आपको मजा नहीं आया यार, इसने ऑर्डर और यूं की तुम बरकरार रखी आपकी सजा या आपका टैक्स, तो आप करोगे अपील टू द इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो देखिए अब पढ़ रहे हैं इसको, इंट्रोडक्शन। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स इज द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, पहली बार अपील इसको करोगे। एंड द इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, आईटैट बोलते हैं, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, अपील से बना है एपिलेट। आईटैट इज द सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी। तो अपील टू द आईटैट कैन बी फाइल्ड बाय एनी ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, आइदर बाय द टैक्स पेयर और बाय द असेसिंग ऑफिसर। ये भी बात सही है, देखिए पहली बार तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील फाइल करेगी इनकम टैक्स ऑफिसर के खिलाफ। मान लीजिए कमिश्नर ने उसकी फेवर में दे दिया, मान लिया आप हैं, आप फाइल कर रहे हैं, आपने फाइल करी अपील और आपके फेवर में दे दिया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा यार बताओ यार मैंने टैक्स इसके ऊपर लगाया था, ये तो कमिश्नर ने उल्टा कर दिया, तो कमिश्नर भी अपील कर सकता है, वो सॉरी इनकम टैक्स ऑफिसर भी अपील कर सकता है आई टैट में, जो पार्टी है। लेकिन वो केस बहुत कम होते हैं। कई बार होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर अपने ऊपर ले लेता है कि यार ये मेरे ईगो के ऊपर ले लेता है, मैंने टैक्स लगाया और मेरी अपील जो है ना वो खारिज कर दी और उसने उसका टैक्स माफ कर दिया, तो वो भी अपील कर सकता है आई टैट। सो द आई टैट इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक
गठन किया जाता है। आयोग है, ट्रिब्यूनल का की हिंदी होती है आयोग, ये आयोग गठन किया गया है और लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आते हैं। तो आईटैट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस ऑफ मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, इसमें कुछ अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं। तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो लॉ को समझते हो, और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स को समझते हो, जैसे सीए वगैरह होंगे या एमकॉम वगैरह किया हुआ अकाउंट्स साइड के एक्सपर्ट्स होंगे। सो इन दिस पार्ट यू कैन गेन नॉलेज फ्रॉम वेरियस प्रोविजंस। तो अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से इन द केस ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर? हाँ जी, आप आर यू विद मी? आप लोग सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, एक बार हम देख लें एक बार कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं अभी। अच्छा, वंदना तो गायब हो गई। अच्छा, आज वंदना को पूछेंगे भाई तुम क्यों गायब हो गई। सो अपीलेबल ऑर्डर इन द केस ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर। बन गई होगी उसकी। कौन कौन से केसेस में टैक्स पेयर फाइल कर सकता है? नंबर 1 है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर अंडर सेक्शन। उसने कुछ रेक्टिफाई किया है ऑर्डर को, तो उसके खिलाफ, रेक्टिफाई का मतलब है कुछ बढ़ा दी सजा, कुछ टैक्स बढ़ा दिया, उसके खिलाफ आप अपील कर रहे हो। या सेकंड ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर, ये डिफरेंट सेक्शंस में, आपको ये सेक्शन याद नहीं करने हैं, मतलब हम इकट्ठा ही आपने 2-3 लाइनें लिखनी है इसके बारे में। एक हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो एक्चुअली पूरा डिटेल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही बनाया हुआ है। या एन ऑर्डर पास बाय अ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 12 AA में क्या आता है? इट रिलेट्स टू द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मेड बाय चैरिटेबल। जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है, क्योंकि देखो रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर ना अलग सेक्शन में टैक्स वगैरह लगते हैं, उनके ऊपर माफी भी होती है, इनकम टैक्स लगता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स ने कहा नहीं भाई हम तो नहीं मानते, इसको ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं मानते हम इसको, हम तो इसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, हम तो उससे हिसाब से टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह के अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें भी आप वो कर सकते हैं, आईटैट के पास अपील कर सकते हैं। या फिर है 4th, मेरा कर्सर है देखिए जहाँ, एन ऑर्डर पास बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80G5। वो ये अप्रूवल ऑफ ये भी चैरिटेबल आपने पढ़ा है, सेक्शन 80G होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी पिछले हफ्ते, कि जिसके अंदर डोनेशन अगर आप सेक्शन 80G अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है। और सेक्शन 80G के तहत रजिस्ट्रेशन होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, तो उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का डिस्प्यूट है तो उसकी अपील है। तो पेनल्टी से रिलेटेड है, ये सब उसी से रिलेटेड है, तो आपको ये सब सेक्शंस याद नहीं करने हैं। तो सब रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की वजह से, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है कोई सेक्शन, तो ये अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स इन द केस ऑफ अपील बाय द कमिश्नर। कमिश्नर का फैसले के ऊपर आप अपील कर रहे हो तो वो किस तरह के ऑर्डर हैं? इफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑब्जेक्ट्स टू एन ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर, then he may direct the assessing officer to make an appeal to the ITAT against orders. The departmental appeal shall be allowed only in the cases where tax effect involved in the appeal exceeds 10 लाख। हाँ, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि खुद जो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर था वो भी अपील कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है यार, उसकी ईगो के ऊपर बात है, यार मैंने एक टैक्स लगाया था, उसको इन्होंने पलट दिया कमिश्नर ने, तो वो उसके खिलाफ आईटैट में जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ 10 लाख से ऊपर के अगर जो केसेस होते हैं उसी में जाएगा वो इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर। 10 लाख से ऊपर, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये वो डिपार्टमेंटल अपील हो गई वो। तो देखिए ये लिखा है, द डिपार्टमेंटल अपील शैल बी अलाउड only in cases where the tax effect involved in the appeal exceeds 10 lakh. Yeah, in other words, the Commissioner of Income Tax can direct the assessing officer to file an appeal to the ITAT against the order of Commissioner of Income Tax appeals only in cases in which tax effect exceeds 10 lakh. अब देखो ये लॉ, ये रूल क्यों बनाया आपके हिसाब से? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि भैया जो डिपार्टमेंट वाले अपील कर सकते हैं वो 10 लाख से ऊपर वाली अपील कर सकते हैं, ऐसा रूल क्यों बनाया होगा? कॉमन सेंस से सोच के देखो। हाँ जी, अमन, राघव, रकीब, अतुल्या, बताइए। ताकि उनके हाथ में ज्यादा पावर ना आए। पावर ना है, हाँ, मतलब छोटे छोटे, पता चला यार 2,50,000 10,000 का केस था, उसके लिए लोगों को ना परेशान कर रहे हैं कि नहीं उसके खिलाफ फिर अपील कर दी। इससे कि छोटा टैक्स पेयर परेशान ना हो। डिपार्टमेंटल का काम ये नहीं हो रह गया ना, डिपार्टमेंट का काम अच्छे सिर्फ बड़ी मछलियां पकड़ने का है। उसके खिलाफ अपील करो ना, उसके अंदर फिर क्या होगा कि वहां से छुट्टी लेगा अपने डिपार्टमेंट से, उसकी अपील के लिए पीछे भागेगा। मान लीजिए कोई 20,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का केस है, उसको अगर कमिश्नर ने 0 कर दिया या कम कर दिया उसका टैक्स, अब उसके खिलाफ वो नीचे वाला ऑफिसर अपील कर रहा है, तो उसकी अपनी सारी एनर्जी उसमें लग रही है कि भैया उनको पहले पकड़ो ना, जो कि और बड़े टैक्स वाले हैं, जो बड़े टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अपील जो होगी तो जिससे डिपार्टमेंट का ज्यादा खर्च ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, और किसी के प्रति जो है ना प्रीजुडाइज ना हो, छोटे टैक्स पेयर के प्रति तो उनको हरास ना करें। तो इसलिए डिपार्टमेंट अगर अपनी अपील करेगा तो वो 10 लाख के ऊपर वाली ही अपील करेगा, ठीक है ना, जिससे अननेसेसरीली फिर टाइम एनर्जी वेस्ट होती है डिपार्टमेंट की। फिर ये लिखा है अपील नॉट टू बी फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट इन सर्टेन केसेस। डिपार्टमेंट किस किस केस में अपील फाइल नहीं कर सकता? एक तो है 10 लाख से नीचे की, वो लिखा है, दोबारा उसी चीज को लिखा है कि 10 लाख से नीचे की। इसका रीजन लिखा है टैक्स इफेक्ट, इतना जितना का टैक्स मिलेगा ना उससे ज्यादा तो खर्चा कर देंगे अपना अपील करने में। तो ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई है। पता चला कि टैक्स मिलना है, 50,000 का टैक्स का डिस्प्यूट था, उसमें खुद डिपार्टमेंट ने इतने पैसे खर्च कर दिए। उसके बाद एडवर्स जजमेंट भी हो जाता है, फिर पता चला वो बंदा हाई कोर्ट चला गया। तो इसलिए ये सारी चीजें लिखी। दूसरा, फिर डिपार्टमेंट को भी इसमें ये लिखा है, देखिए डिपार्टमेंट को भी अपना वो करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी देखनी है। ये नहीं है कि बस ईगो के ऊपर अपील कर दी उसकी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है उस रूल की। और रेवेन्यू के ऑडिट का ऑब्जेक्शन, रिट मैटर्स, ये सारी उससे अपने केस भी स्टडी करने हैं, तब जाकर के डिपार्टमेंट को अपील करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टाइम लिमिट इसमें क्या है प्रेजेंटिंग अपील की। अगर एक आम आदमी को या बिजनेसमैन को कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ आईटैट में अपील करनी है तो अपील टू आईटैट इज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो अब आप याद रखो कि असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ अपील होगी, पहली अपील होगी कमिश्नर के पास, वो अपील होगी 30 दिन के अंदर। कमिश्नर के खिलाफ जो अपील करनी है वो अपील करनी है आईटैट में, वो 60 दिन के अंदर करनी है। अपील टू इज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट इन विच ऑर्डर sought to be appealed is communicated by the principal commissioner office। जिस दिन उसको ऑर्डर मिला है उसके 60 दिन के अंदर। और अब ये याद रखो, फॉर्म एंड सिग्नेचर, द अपील टू आईटैट शैल बी फिल्ड इन फॉर्म नंबर 36। तो कमिश्नर के यहाँ जो अपील करोगे फॉर्म नंबर 35 है और इसके अंदर फॉर्म नंबर 36 है। आप ये देखो, मोटी मोटी बातें आपको अभी याद हो गई। और अपील का क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, 2019 में भी आया, 2018 में भी अपील का क्वेश्चन आया। तो आप ये 35 नंबर, फॉर्म नंबर 36, उसकी कितनी फीसें लिख दोगे, आपको याद होगी, तो आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि यार स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ। सो इन केस ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर, द फॉर्म of appeal, the grounds of appeal and the form of verification are to be signed and verified by the person authorized to sign the return of income। तो जाहिर बात है कि वो उसका फॉर्म भरेगा, उसका रीजन भरेगा, उसमें क्या किस चीज के ऊपर उसको ऑब्जेक्शन है वो भरेगा और साइन करके देगा फॉर्म को। ये देखिए, अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर ही साइन करेगा उसको, नहीं तो या किसी को देगा जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा दूसरे बंदे को। सपोज मान लीजिए मेरा केस है और मैं 6 महीने के लिए मुझे फॉरेन जाना पड़ गया, तो पीछे मेरा केस जो है मैं किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ब्रदर को, अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ, तो वो मेरा केस मेरे बिहाफ पे वो पेश हो सकता है। अगर HUF का केस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, तो कर्ता उन सबको रिप्रेजेंट करेगा, तो कर्ता ही साइन करेगा। अगर कर्ता इतना बीमार हो गया है, वो साइन नहीं कर पा रहा है, तो एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ सच फैमिली कर सकता है। अगर कंपनी के केस में MD करेगा, ये लिखा है देखिए MD। फर्म है तो जो भी मैनेजिंग पार्टनर है
स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, मैनेजिंग पार्टनर होना चाहिए फर्म का। एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। लोकल अथॉरिटी है तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रेसिडेंट साइन करेगा। अगर एसोसिएशन एसोसिएशन है कोई तो उसका भी प्रिंसिपल ऑफिस साइन करेगा। मेमोरेंडम ऑफ सॉरी हाँ, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद अपील, ये देख लेते हैं कहाँ गए। डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म नंबर 36 ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी जाएंगी फॉर्म नंबर 36 की। तो फॉर्म नंबर 35 कमिश्नर के अपील पे है और आईटेट में है फॉर्म नंबर 36, इसकी 3 कॉपी जाएंगी। ऑर्डर अपील अगेंस्ट, जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की कॉपी भी तो लगाओगे ना, जिस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर रहे हो उस ऑर्डर की भी 2 कॉपी लगेंगी। एक सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब है नोटराइज से, या अगर सेल्फ अटेस्ट अलाउ करते हैं तो सेल्फ अटेस्ट करके। ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, जो उससे पहले का जो असेसिंग ऑफिसर था उसके भी ऑर्डर की 2 कॉपी लगाओगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील बिफोर फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, जो आपने पहली एपिलेट अथॉरिटी कमिश्नर के ऊपर क्या ग्राउंड रखे थे अपनी अपील के, उसकी भी 2 कॉपी। वो वहां जो एप्लीकेशन दी थी उसकी 2 कॉपी। इसके बाद इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर, इसकी भी 2 कॉपी लगेंगी। इन केस ऑफ अपील, अगर इस सेक्शन में है कोई तो उसकी भी 2 कॉपीज लगेंगी। तो एंड कॉपी ऑफ चलान फॉर पेमेंट ऑफ द फीस। अब ये देख लेते हैं कि फीस क्या है इसके। उसमें तो थी 250 रुपए थी 1 लाख तक, 1 लाख से 2 लाख के बीच में 500 थी, और 2 लाख से ऊपर का अगर केस है तो 1000 फीस थी। इसमें क्या है, 1 लाख तक का केस है तो वहां 250 थी या 500 है। यहाँ 1 लाख से 2 लाख वहां पर थी 500 रुपए फीस, यहाँ 1500 फीस हो गई, क्योंकि ये और ऊपर की बॉडी हो गई ना। इसमें लॉ के जज वगैरह भी बैठे होते हैं इसमें। कहाँ गया, एक मिनट, ये कहाँ नीचे। हाँ 1500, और 2 लाख से ऊपर अगर का केस है तो 1% जितने भी असेस्ड इनकम है, जो जितनी इनकम है उसका 1% आपकी फीस लगेगी। जैसे 3 लाख रुपए का केस, 3 लाख का डिस्प्यूट है तो 3 लाख का 1% कितना हो गया, 3000 फीस हो गई। 4 लाख का है तो 4000 हो गई। 10 लाख का केस है तो 10,000 फीस हो गई। तो यहाँ परसेंट पे कर दी। बट यहाँ पर भी ये डॉलर लगा दिया। डॉलर का मतलब है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 मैक्सिमम है। लेकिन तो 10 लाख के केस में 10,000 हो गई, और 20 लाख का केस है तो भी 10 लाख हो गई। 10 लाख मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है 20 लाख का केस में 20,000 फीस होगी, या 1 करोड़ का केस है तो 1 लाख फीस होगी। वो 10,000 मैक्सिमम है। अब ये क्या है, सबमिशन ऑफ पेपर बुक। The appellant or respondent, that is opposite party, that is the opposite, may submit a paper book. A paper book is to be submitted in duplicate and should contain documents and statement of the papers referred to in the assessment order or the appellate order on which appellant respondent want to reply. The paper book should be duly indexed and page numbered. It should be filed at least a day before the hearing of the appeal. It should be filed along with the proof of service of copy of the paper book of the opposite party to the at least a week before. Each paper in the paper book is to be certified true copy. The delay in filing the paper book may be condoned in genuine cases of delay. The ITAT can also on its own direct the preparation of paper book in triplicate and the cost of appellant additional evidence. देखिए पेपर बुक क्या चीज है। पेपर बुक का मतलब है जिसमें आपके सारे पेपर्स लगाओगे ना, पूरा अपना जत्था पेपर्स का, अपनी प्रूफ्स लगाओगे, रिसीप्ट्स लगाओगे, कैश बुक की कॉपीज लगाओगे, स्टेटमेंट्स लगाओगे कि भाई आपके ऊपर क्या टैक्स आया है, अपनी इनकम के प्रूफ्स दोगे, तो वो सारा एक फाइल में लगा के दोगे। तो उस फाइल को, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो उसके अंदर अलग अलग पेपर्स आप लगाते हैं, कोई भी आप पेपर निकाल सकते हो बीच में। इस तरीके से उसको ये नहीं है परमानेंट बाइंडिंग करानी है आपने, कि जिसमें से आप जो इस तरह की फाइल लगानी है कि एक पेपर निकाल सको उसके अंदर वापस लगा सको। तो उस तरह की पेपर बुक आपको तैयार करनी है अपील से पहले। पूरे अपने पेपर्स का जत्था लेके जाना है अपने, ताकि उन्हीं के ऊपर तो देख करके वो डिसाइड करेंगे। अब हियरिंग ऑफ द अपील, ITAT will fix the date of hearing along with the place of hearing the appeal and will
also notify the party. The copy of memorandum of appeal is to be sent to the respondent either before or along with such notice. The ITAT will hear the appeal on the date fixed. The appeal will be adjourned on other dates and such a case. हो सकता है देखिए इसमें भी तारीख लगेगी और हो सकता है उस दिन पूरा फैसला हो तो अगली तारीख पे आना पड़ेगा, 3-4 तारीख में हो सकता है ये इसमें लगे. If the appellant is called by the ITAT but fails to appear before the ITAT either in person or through an authorized representative, the appeal may be disposed of by the ITAT on merits after hearing the respondent. अगर जो आपको डेट दी है और उस डेट में रिस्पोंडेंट नहीं आया, अपीलेंट नहीं आया जिसने अपील की है या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, तो अपील जो है वो उस तरह से डिस्पोज कर दी जाएगी. अपने आप वो उसकी मेरिट्स को देख करके अपील को डिस्पोज ऑफ कर देंगे. Subsequent to the ex parte hearing, the appellant appears before the ITAT and satisfy the ITAT that there was sufficient cause in his case for non-appearance before the ITAT, then set aside the ex parte order and restore the appeal. Similar procedure is applicable where appeal is disposed of. देखो ऐसे होता है कि कोर्ट में भी यही होता है, ये एक तरह का कोर्ट का प्रोसीजर है. अगर दो पार्टी में से एक पार्टी ना आए तो कोर्ट को ये राइट होता है, उसको बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर. ये लिखा हुआ ना, ये देखो जहां मेरा स्लाइड है, EXPARTE, एक्स पार्टी, ये लीगल वर्ड है. एक्स पार्टी मतलब है एक पार्टी आई नहीं है, अब कोर्ट जो भी जैसा भी समझेगी अपना वो ऑर्डर पास कर देगी, क्योंकि दूसरा पक्ष अपनी बात रख नहीं पाया तो एक पक्ष के आधार पर ही वो अपना ऑर्डर दे सकती है. लेकिन इसमें यह लिखा है कि अगर उसने एक्स पार्टी कर दिया लेकिन उसके बाद अगली डेट पर वो अगर बताए कि और वो बताए कि रीजन बताए, देयर वाज सफिशिएंट कॉज कि मैं वो क्यों नहीं आ पाया, बीमार था या क्या वजह थी, तो वो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा कोर्ट और रिस्टोर दी अपील, अपील को दोबारा रिस्टोर कर देंगे, वरना वो खारिज भी कर सकता है पुरानी अपील को. फाइलिंग ऑफ एडिशनल एविडेंस, फाइलिंग ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द ITAT बाय पार्टीज टू द अपील इज नॉट परमिटेड. कमिश्नर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि परमिटेड थी, लेकिन पहले उस वो बोलेगा कि नीचे वाले को भी देखे आओ भैया, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी दिखाओ, पहले आपने उसको क्यों नहीं दिखाई, मेरे पास एडिशनल एविडेंस क्यों दे रहे हो. बट यहाँ लिखा है ये यहाँ परमिटेड ही नहीं है. इन अदर वर्ड्स एडिशनल एविडेंस ऑफ एनी काइंड, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, कैनॉट बी फाइल्ड बिफोर द ITAT. हाउएवर, if the tribunal requires production of any document, examination of any witness or filing of any affidavit to enable it to pass orders, it may allow such documents to be produced, witness to be examined, affidavit to be filed and such evidence to be adduced. वैसे तो एडिशनल एविडेंस अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल जब जब जरूरत होती है तो वो उसको बताएगा पार्टी को कि भाई ये डॉक्यूमेंट पेश करो, कोई भी विटनेस को बुलाओ या कोई भी एफिडेविट को फाइल करो, जिससे कि वो अपने ऑर्डर पास कर सके. अब आता है ऑर्डर ऑफ ITAT. ऑर्डर ऑफ ITAT में क्या लिखा है? A member of the bench of the ITAT hears the appeal. After hearing the appeal, the ITAT will pronounce its order and will communicate the order to the taxpayer as well as the assessing officer. ITAT जब सारी सुनवाई कर लेगा तो अपना ऑर्डर पास करेगा और वो टैक्सपेयर को भी भेज देगा और असेसिंग ऑफिसर जो शुरू वाला जो असेसिंग ऑफिसर था उसको भी अपनी कॉपी भेजेगा. अपील्स आर हर्ड बाय द बेंच कंप्राइजिंग 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 अकाउंटेंट मेंबर. जो भी बेंच होती है उसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल साइड से होगा, एक अकाउंट साइड से होगा. अपील्स वेयर टोटल इनकम कंप्यूटेड बाय द असेसिंग ऑफिसर डज नॉट एक्सीड 50 लाख में बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सिंगल मेंबर बेंच. 50 लाख रुपए तक की अपील में एक सिंगल बेंच भी हो सकती है, मतलब एक ही बंदा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 लोग हों. If the members of the bench differ on opinion on any point, the decision is taken on the basis of majority. देखो जजेस में भी यही होता है, जैसे आपके कोर्ट में होता है जो भी फैसला होता है, जैसे 3 जजेस की बेंच है या 5 जजेस की बेंच है तो मेजॉरिटी अगर जजेस की एक फैसले के ऊपर है तो मेजॉरिटी की मानी जाती है. तो अगर मान लीजिए उसमें डिफर करते हैं तो डिसीजन अगर मेजॉरिटी के आधार पे जहां मेजॉरिटी जा रही है उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा. द मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस आर स्टेटेड बाय ईच मेंबर, इन द केस रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द ITAT फॉर हियरिंग सच पॉइंट्स बाय 1 और मोर मेंबर्स ऑफ द ITAT. मान लीजिए 2 मेंबर की बेंच है, दोनों में से एक अगेंस्ट है एक फेवर में है, या 4 मेंबर्स की बेंच है 2 फेवर में 2, तो तब आप कैसा फैसला लेंगे? मेजॉरिटी नहीं आएगी. तो उस केस में जो ITAT का प्रेसिडेंट है उसके पास रिफर कर देंगे. Such point or points is decided according to the opinion of the majority of the members of ITAT who have heard the case, including those who first heard it. तो वो फिर अपना केस प्रेसिडेंट के सामने रख करेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास छोड़ देंगे फैसला. Normally the bench pronounces its order in court. However, when the orders are not pronounced in the court, list of such orders showing results of appeal and signed by the members are put on the notice board of the bench.
वैसे तो अपना कोर्ट में ऑर्डर ओरली बताती है बेंच, लेकिन अगर ओरली पॉसिबल नहीं है तो वो अपना नोटिस लगा देगी वहां पर ऑर्डर का कोर्ट में। डिस्पोजल ऑफ द अपील, वेयर इट इज पॉसिबल द ITAT शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years। यहाँ इनके लिए 4 साल का समय है। देखिए यहाँ जो केसेस आते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कमिश्नर 1 साल के अंदर निपटारा कर देगा, ये आपको याद रखना है। और ITAT जो है ट्रिब्यूनल जो है वो 4 साल में निपटारा कर सकता है, क्योंकि कई बार इतना टाइम लग जाता है। एक स्टे एप्लीकेशन भी, जैसे हम कोर्ट में स्टे ले लेते हैं तो स्टे एप्लीकेशन भी हो सकती है। स्टे एप्लीकेशन क्या है? द ITAT may on an application made by the taxpayer and after considering the merits of the application pass an order of stay in any proceedings। The stay order will be in operation for a period not exceeding 180 days। 180 days का मतलब हो गया 6 महीने। वो स्टे भी लगा सका भाई, 6 महीने तक हमने स्टे लगा दिया। The ITAT shall dispose of the appeal within the set period of stay specified in that order। तो 6 महीने का वो स्टे ऑर्डर भी लगा सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एपिलेट ऑर्डर, एपिलेट अपने ऑर्डर में रेक्टिफाई भी कर सकती है। द ITAT may at any time within 6 months from the date of the month in which the order was passed rectify any mistake apparent from the record, amend any order passed by it if the mistake is brought to its notice by the taxpayer or assessing officer। However, where such amendment has the effect of enhancing or an assessment or reducing a refund or otherwise increasing a liability of the taxpayer, it shall not be made unless the appellate tribunal has given a notice to the taxpayer of its intention to do so and has allowed taxpayer। अगर कोई उसके ऑर्डर में उसको पॉइंट आउट टैक्सपेयर कर सकता है या असेसिंग ऑफिसर कर सकता है कि भाई आपके ऑर्डर में एक थोड़ी सी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कुछ और लीगली मिस्टेक हो गई, तो 6 महीने में वो ठीक भी कर सकता है ITAT अपने ऑर्डर पे। लेकिन ऐसा अमेंडमेंट असेसमेंट को बढ़ाने के लिए या रिफंड को रिड्यूस करने के लिए नहीं हो सकता तब तक कि वो सुनवाई ना कर सके। चलिए इसके भी थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर ये आज का हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ये देखिए फिर है, हाँ जी, यू आर विद मी स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट लास्ट 5 minutes। क्वेश्चन नंबर 1, द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT इज द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा नीचे ये ट्रू है। ओके, क्वेश्चन दिखा नहीं शो, अच्छा ये ट्रू है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सेकंड अथॉरिटी है। पहली तो कमिश्नर है, कमिश्नर के बाद फिर दूसरा अपील होगा ITAT के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर है अपील टू द ITAT कैन नॉट बी फाइल्ड बाय एन असेसिंग ऑफिसर, ट्रू और फॉल्स? ये है फॉल्स। ITAT में हाँ ये लिखा है ना कैन नॉट बी फाइल्ड, इट कैन बी फाइल्ड। असेसिंग ऑफिसर भी फाइल कर सकता है, हमने पढ़ा है ना 10 लाख से ऊपर का केस फाइल कर सकता है। 10 लाख से ऊपर कर सकता है। फिर है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स under section 154 is the final order and the taxpayer cannot file an appeal under to the ITAT against such order। ये फॉल्स है क्योंकि कोई भी सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 154 के खिलाफ भी ITAT के पास कोई से भी ऑर्डर की अपील हो सकती है। उसके बाद है ये आ गया, हाँ द अपील टू ITAT shall be filed, नहीं ऊपर का रह गया, ये ऊपर का रह गया। अपील टू ITAT, क्वेश्चन नंबर 6, appeal to ITAT to be filed within a period of 60 days from the order, so the answer is true। कमिश्नर के खिलाफ 30 दिन में करना है, यहाँ पे 60 दिन में करना है। एक ये है क्वेश्चन कि डिपार्टमेंटल अपील मींस डैश 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 डैश, इसका आंसर है बी। डिपार्टमेंटल अपील का मतलब होता है अपील फाइल्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील पास्ड अंडर सेक्शन 154 to 250 टू द ITAT। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5,
where departmental appeal is allowed to be proceeded only in case where the tax effect is more than C 10 लाख से ऊपर ही डिपार्टमेंटल अपील फाइल हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था 60 दिन के अंदर हो सकती है, ये है ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है द अपील टू आईटेट शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर, इसका फॉर्म नंबर है 36, तो आंसर इज सी। कमिश्नर का फॉर्म है 35। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 on filing of appeal to the ITAT by the taxpayer or by the assessing officer, the opposite party will be intimated of the appeal and the opposite party has to file a memorandum of cross objection with the ITAT. तो आंसर है ट्रू। अगर कोई ऑब्जेक्शन है इनकम टैक्स ऑफिसर को तो वो फाइल कर सकता है, तो है ट्रू। फिर है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, the ITAT shall dispose of the appeal within a period of 4 years, so it's true, 4 साल में अपील फाइल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया था 9th, अगर 2 लाख से इनकम ज्यादा है तो कितना परसेंटेज है? डी, आंसर इज डी, 1% ऑफ द असेस्ड इनकम सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000। ठीक है, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, आपको इनको याद करना है और एग्जाम में आपका अपील्स का क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन तो आप पूछे, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। सो आई थिंक वी हैव remember the main points of the appeals to commissioner and appeals to ITAT. किसी को कोई क्वेश्चन है? Any question? समझ में आ गया? नो सर। अच्छा, तो समझ में आ गया। मेरे ख्याल में सिंपल है ये अपील्स का। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, सो यू कैन गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो राइट, सो आई विल So let us now close the session. So it has been a 1.5 hour session. So thank you very much for attending this session. So we will meet next time. So I'm stopping the recording and I'm taking your attendance.